السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کمیونٹی 7 کے آئی ایم ایس کے سیشن میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ تو گروپ 1 کے راجہ حسیب علی خان آج کے سیشن کو پریزنٹ کریں گے۔ میں آپ کو تھوڑا سا اوور ویو دے دیتا ہوں کہ ہم اپنا ویکلی تفسیر سیشن سٹارٹ کر رہے ہیں آج سے، اور یہ سیشن ہر وینسڈے کو رات 10 بجے ہوا کرے گا انشاءاللہ۔ اب ہم نے سٹارٹ لیا ہے سورہ توبہ سے، اور اس سے پہلے ہم سورہ توبہ کا کانٹیکسٹ ڈسکس کریں گے، اور اس سے پہلے ہم کچھ مین کانسیپٹس جو کہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے جو ریکوائرڈ ہیں، جو کانسیپٹس ان کو ڈسکس کریں گے، تاکہ ہم اپنے اس سفر کو ایزیلی ٹریورس کر سکیں، کہ ہم جب کسی بھی ایک مشکل کانسیپٹ کی طرف آئیں یا کسی آیت کی انٹرپریٹیشن کی طرف آئیں، تو ہمیں ہماری جو فاؤنڈیشن ہے، ہماری جو بیس ہے، وہ بنی ہو۔ اور اس صورت کو جو کہ ہم نے چوز کی ہے اپنے اس سیشن کو سٹارٹ کرنے کے لیے، اس کی انڈرسٹینڈنگ میں بھی ایک امپورٹنٹ رول پلے کرے۔ تو ہمارے شروع کے جو 4-5 سیشن ہوں گے وہ اسی کانسیپٹس کو ایکسپلین کریں گے آپ کو۔ اس کے بعد پھر ہم سورہ توبہ کا جو شان نزول ہے، کانٹیکسٹ ہے، وہ آپ کو بتائیں گے، اور پھر ہم آہستہ آہستہ سورہ توبہ کی باقاعدہ تفسیر کی طرف آئیں گے، کہ پہلی آیت سے سٹارٹ کر کے ہم ورڈ بائی ورڈ، آیت بائی آیت تفسیر کی طرف آئیں گے۔ تو آج کے سیشن میں راجہ حسیب علی خان سٹارٹ کریں گے۔ راجہ حسیب علی خان، اوور ٹو یو، آپ پلیز بسم اللہ کریں۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جیسے کہ انس نے بتایا کہ ہم اس سیشن میں سورہ توبہ کو کریں گے، اور سورہ توبہ اصل میں قرآن پاک کی مشکل ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ یعنی قرآن پاک کی صورتیں، ان کو سمجھنا انسان کے لیے اتنا ایزی بھی نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ محنت چاہیے ہوتی ہے، لیکن یہ سورہ توبہ، اس کو سمجھنے میں بہت مشکلات آتی ہیں۔ اب بیسکلی میں سورہ توبہ کا تھوڑا سا ہلکا سا ایک انٹروڈکشن آپ کو دیتا ہوں۔ اس میں ہے کیا؟ بیسکلی اس میں اللہ تعالیٰ نے ریوارڈ اور پنشمنٹ جو ہے اس کی اناؤنسمنٹ کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جزا و سزا کا اعلان کیا ہے۔ اب وہ اس میں نا 4 کیٹیگریز ہیں، 4 گروپس آف پیپل ہیں جن کے لیے یہ ہے۔ نمبر 1، جو سب سے پہلا گروپ تھا وہ تھا مشرکین مکہ کا، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ایڈریس کیا۔ اور دوسرے پہ اہل کتاب، جن میں جیوز اینڈ کرسچنس ہیں۔ تھرڈ کے اوپر منافقین، ہپوکریٹس، یعنی وہ بظاہر تو اسلام لے کے آئے ہوئے تھے لیکن ان کے دلوں میں نفاق تھا۔ چوتھا مومنین کا، جو نبی پہ ایمان لے آئے تھے۔ اب ان چاروں کے بارے میں جو ہے وہ ڈیٹیل ڈسکشن سورہ توبہ میں ہوئی ہے۔ سورہ توبہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کچھ چیزیں سمجھنا ہوں گی جو بہت ضروری ہیں، یعنی آپ سمجھ لیں اس کے پری ریکوزٹ ہیں، یعنی بات بالکل سٹارٹ سے شروع ہوگی اور پھر آخر تک ہم غزوہ حنین مطلب سیرہ کی یہ چیزیں دیکھیں گے۔ تو پھر جب ہمارا ایک سارا بلٹ اپ ہو جائے گا، پھر جب ہم سورہ توبہ کی آیت 1 سے سٹارٹ کریں گے، پھر الحمدللہ انشاءاللہ ہمیں جو ہے نا بڑی ایزیلی وہ سمجھ آ جائے گی، ورنہ ہم جو ہے وہ چیزوں میں کنفیوز ہوں گے۔ تو میں سٹارٹ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے بات میں سٹارٹ کروں گا اللہ تعالیٰ کی معرفت سے، یعنی ذات باری کی معرفت کیا ہے۔ یہ دیکھیں، ہمیں ایک چیز تو کلیئر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے، کس طرح کی ہے، کس طرح ایگزسٹ کرتی ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم باؤنڈ ہیں ٹائم اور سپیس میں۔ ایک ٹائم اور سپیس کی باؤنڈ میں ہونے والی جو اینٹی ہے، وہ ایک جو ذات خدا بندی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتی کہ وہ کس طرح ہوگا، کس ٹائپ کا ہوگا۔ لیکن ایک چیز ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں جان سکتے ہیں، جو قرآن نے ہمیں بتایا ہوا ہے۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت کو جاننے کے لیے نا 2 چیزیں قرآن نے ہمیں بتائی ہیں۔ ایک جس سے ہم بخوبی واقف ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، غفور ہے، کریم ہے، قہار ہے، جبار ہے۔ یعنی اس طرح کی اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ قرآن پاک میں مینشن ہے، اور بہت ہی ڈیٹیل میں مینشن ہے۔ دوسری اللہ تعالیٰ کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اپنے بندوں کے ساتھ کس طرح کے معاملات لے کے چلتا ہے، یعنی اس کے لیے جو لفظ ہے وہ سنن کا ہے۔
सुनन यूजुअली हम तौर पे आपने वर्ड तो सुना होगा, सुन्नत नबवी या अंबिया की सुन्नत, जैसे कुर्बानी को सुन्नत इब्राहिमी कहते हैं। इस तरह ये लफ्ज़ जब हम सिंपल सुन्नत कहते हैं तो उसमें हमारे ज़हन में ये जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। लेकिन जो सुन्नत का लफ्ज़ी मतलब होता है वो कुरान पाक में को अगर आप स्टडी करते हैं ना, तो ये चीज़ जो है अल्लाह ताला के लिए यूज़ हुई हुई है। और सुन्नत की जमा सुनन है, मतलब सिंगुलर सुन्नत और उसका प्लूरल सुनन। जब हम कुरान पाक को इन डिटेल इन डिटेल जब उसको स्टडी करते हैं, जब हम कुरान को इन डिटेल स्टडी करते हैं तो हमें पता लगता है अल्लाह ताला की जो है वो 7 सुनन है। और उन वो क्या है, मैं भी आपको इन 7 सुनन का हल्का सा इंट्रोडक्शन दूंगा। और बाद में जो इब्तला और जज़ा और सज़ा है जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है उनको डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा। अल्लाह ताला की सुन्नत है इब्तला, यानी आपको पता है कि हम दुनिया में हैं अल्लाह ताला की इसी सुन्नत की वजह से, यानी हमें इम्तहान में डाला गया है। अल्लाह ताला टेस्ट लेता है इसी इसी सुन्नत के तख्त। और दुनिया में इंसान भी आए इससे पहले जो जिन्नात हैं उनको भी इसमें, यानी इस टेस्ट में डाला गया जो हमारे पास एक लाइफ की फॉर्म में मौजूद है। हदायत और दलालत, अगर इंसान किसी हदायत के रास्ते पे जाना चाहे तो अल्लाह ताला की सुन्नत है कि वो उसके लिए हदायत के रास्ते मुहैया करता है। लेकिन अगर वो गुमराही में जाना चाहे तो अल्लाह ताला उसके लिए गुमराही के रास्ते ऐसे खोलता है कि वो उसमें धंसता चला जाता है। ये अल्लाह ताला की सुन्नत है। दूसरा, फिर तीसरी है तकलीफ मालाई अताक। तकलीफ मालाई अताक को आप इस तरह समझें कि अल्लाह ताला किसी जान पे उसके बोझ से बढ़ के मुकल्लफ नहीं ठहराता। यानी आप पे उतनी ही जिम्मेदारी आयद है जितनी आप में इस्तात है, और उससे बढ़ के आपके ऊपर कोई नहीं जिम्मेदारी आती। चौथी अल्लाह ताला की सुन्नत है अज़लो नसब। ये यानी इसका ताल्लुक है कौमों से रिलेटेड, ये इंडिविजुअल से नहीं है। बल्कि जो अल्लाह ताला जब किसी नेशन के साथ मामलात करता है, किसी कौम के साथ, तो वो अपनी इस सुन्नत के ही तख्त करता है, उनको जजा देता है, मतलब उनको अ, उनके साथ इनामात देता है जब वो उसके साथ कंप्लाई करते हैं उसकी चीज़ों के साथ। और अगर वो डिविएट करते हैं तो उनके लिए मुश्किलात आती हैं। नुसरत इलाही, ये तो एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, नाम से ही जाहिर है कि यानी अल्लाह ताला की नुसरत, अल्लाह ताला की मदद अपने नेक बंदों के लिए होती है, वो अल्लाह ताला की इसी सुन्नत के तख्त होती है। तौबा व इस्तगफार, यानी अल्लाह ताला तौबा को कबूल फरमाता है, इस्तगफार को। तो ये यानी अल्लाह ताला की सुन्नत है, यानी अगर कोई बंदा सच्चे दिल से, सिद्के दिल से को तौबा करेगा तो अल्लाह उसको ज़रूर कबूल फरमाएगा। आखिरी जो सुन्नत है सातवीं, वो जज़ा व सज़ा है। जज़ा व सज़ा यानी रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। और जिस तरह हम सुनते आ रहे हैं बचपन से कि आखिरत का कॉन्सेप्ट है, वो सारा है ही इसी सुन्नत के ऊपर बेस। जो नेक अमाल करेंगे उनको जज़ा मिलेगी, रिवॉर्ड मिलेगा। और जो नेक अमाल नहीं करेंगे, बुराई में मुब्तला होंगे, उनको सज़ा मिलेगी। तो ये बेसिकली 7 सुनन है। इनकी इन डेप्थ डिटेल आपको कुरान पाक में मिल जाएगी जगह जगह मुकामात पे। और एक चीज़ यहाँ पे एक बताता चलूँ कि अल्लाह ताला के जो सुन्नत है, अल्लाह ताला का जो भी कलाम है या कोई भी चीज़ है, उसमें एक कंसिस्टेंसी है। यानी हम इंसानों के साथ तो मजबूरियाँ जुड़ी होती हैं, हम अगर एक कमिटमेंट भी करें तो कायम नहीं रह सकते, अगर चाहें भी तब भी नहीं रह सकते। अक्सर तो मसला होता है कि हम चाहते ही नहीं है, लेकिन बावजूद इसके कि हम जो हैं वो चाह रहे हों, हम अपनी तरफ से फुली चाह रहे हों, लेकिन फिर भी हमारे पास इंसानी वजूद की वजह से कुछ कमज़ोरियाँ अटैच हैं कि हम उन पे कंसिस्टेंट नहीं रह सकते। लेकिन अल्लाह ताला के साथ ये मामला नहीं है, वो परफेक्शन के ऊपर है। तो उसकी जो जितनी भी सुन्नत है वो तब्दील नहीं होती। यानी अगर अल्लाह ताला की जो सुन्नत है जज़ा और सज़ा की, तकलीफ़ माला अता की, ये सारी जो है कंसिस्टेंट रहेंगी, इनमें कोई भी आपको चेंज नज़र नहीं आएगा। आगे जिस तरह मैंने बताया था कि 7 सुनन में दो दो जो सुनन है, दो सुनते हैं, ये बहुत ही कह लें गैर मामूली हैसियत की हामिल है, यानी एक स्पेशल किस्म की ये है। क्योंकि अगर देखें जो सुन्नत इब्तला है, अगर हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं है ना, तो फिर हम इस दुनिया को, इस दुनिया के कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं सकते। क्योंकि सारी चीज़ें जो है ना,
आप कह लें इस दुनिया में, वो इसी सुन्नत के साथ अटैच हैं। जब हमें ये समझ आ जाती है, फिर हमें अल्लाह ताला की ना एक पूरी स्कीम समझ आती है कि यार हम दुनिया में क्यों भेजे गए, हमें किस चीज़ के लिए टेस्ट किया जा रहा है। अब देखें कुरान पाक में इसको किस तरह बयान किया हुआ है। सूरह मुल्क में इस चीज़ का जिक्र है, सुन्नत इब्तला के बारे में, कि इंसान को यहाँ पे आजमाइश के लिए भेजा गया है, यानी टेस्ट के लिए, उसको एक एग्ज़ाम पास करना है। तो ये अल्लाह ताला की सुन्नत इब्तला है। अब दूसरी अगर आ जाए, जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे टॉपिक से भी रिलेटेड है, वो है जज़ा और सज़ा की सुन्नत। अब एक चीज़ ऑब्वियस है, जब आप किसी को टेस्ट में एग्जामिन करते हैं तो उसका रिजल्ट ऑब्वियस होता है, और हमें ये भी पता है वो रिजल्ट दो ही फॉर्म में हो सकता है। आइदर यू गेट द रिवॉर्ड और यू गेट द पनिशमेंट। अगर अच्छे काम, अगर आपने उस टेस्ट को अच्छे तरीके से किया है तो आप पास हो गए, आपको जज़ा मिलेगी, और अगर आपने बुरे तरीके से किया है तो आपको उसकी सज़ा मिलेगी। ये कुरान पाक की आयत में इस तरह ये बयान किया हुआ है। अब देखिए, सबसे पहली चीज़, जब ये दो चीज़ें हमने सुनते हैं डिस्कस की, इब्तला और जज़ा और सज़ा, अब एक चीज़ आपके जहन में बात आएगी, यार हमें अल्लाह ताला ने अगर टेस्ट के लिए भेजा है, एग्ज़ाम के लिए भेजा है, तो एग्ज़ाम है किस चीज़ का? ये क्वेश्चन तो माइंड में आएगा। ये अल्लाह ताला ने ना एग्ज़ाम किस चीज़ का है, ये भी कुरान पाक में बिल्कुल वाज़े करके बता दिया है। अब मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में वो बता देता हूँ। एग्ज़ाम हमारा दो चीज़ों का है। एक अल्लाह ताला की पहचान का, जिसको हम ताबीर करते हैं ईमान से। दूसरा नेक अमल, यानी हमने गुड मॉरल के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। तो ये दो हमारे इम्तिहानात हैं, एक ईमान का, अमले साले का। ईमान का यानी ताल्लुक, हमने अल्लाह ताला की ज़ात को पहचानना है, उसकी तौहीद की गवाही देनी है। इसका ताल्लुक जो है हमारे नॉलेज से है, कि कितना हमने नॉलेज गेन की है, ये इसका टेस्ट है। दूसरा हमारे अमल क्या है, अमले साले का, यानी जब हमें ये पता लग गया है, हमें ये पता है कि ये चीज़ अच्छी है बुरी, तो हमने अच्छी चीज़ की तरफ जाना है, बुरे से बचना है। अब देखें, अ, जब अल्लाह ताला ने इंसान को इस टेस्ट में रखा है, तो अब सारी बात है कुछ ना कुछ मटेरियल प्रोवाइड करना है। अदरवाइज तो ये हो सकता है कि क़यामत के दिन जब इंसान जाए, वो बोलें या अल्लाह कि हम किस तरह आपको पहचानते। तो इस तरह के एक उज़र यानी एक्सक्यूज़ आ सकता था। अल्लाह ताला ने इस टेस्ट के लिए सबसे पहला जो इख्तिमाम किया, अरेंजमेंट जो किया, वो ये किया कि जब इंसान को, अभी पूरे इंसानों की स्कीम बनी थी, सबको अपने सामने खड़ा किया, उनसे पूछा है, उनको मतलब एड्रेस किया, पूछा है कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने उसके ऊपर जवाब दिया, आप ही हमारे रब हैं। और अल्लाह ताला ने ये जो वाक़या हुआ था, इसका शऊर, यानी इसकी जो मेमोरी थी, वो इंसान के, मेमोरी तो अरेज कर दी, लेकिन इसके जो ट्रेसेस हैं वो इंसान के अंदर रख दिए। तो अल्लाह ताला ने जो सबसे पहला अरेंजमेंट किया है अपनी पहचान के लिए, वो ये किया है कि अपना जो शऊर है, अपना जो कॉन्सेप्ट है, वो इंसान के अंदर डाल के भेजा हुआ है। यानी आपको इसको मैं सिंपल अल्फाज में समझाऊं, जब कोई किसी बच्चे को बताया जाता है गॉड के बारे में, वन गॉड के बारे में, तो उसको ये चीज़ अजनबी नहीं लगती। वो उसकी रीज़न ये होता है कि अल्लाह ताला ने उसके अंदर ये दे के भेजा है। अल्लाह ताला ने इसके साथ कुछ और चीज़ें भी दे के भेजी हैं, जिसको एस्थेटिक सेंस है, मॉरल सेंस है। यानी आप इजीली, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके लिए आपको किसी को सिखाना नहीं पड़ता, या ये गुड चीज़ है, ये बैड चीज़ है। यानी बच्चे होते हैं हमारे सामने, छोटे होते हैं, हम देखते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते हैं, उनको सिर्फ ये पता लगे कि ये वर्ड गुड है, ये बैड है, ये अच्छा है, ये बुरा है। आगे वो फिर उसके बारे में खुद ही डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, यार अच्छा ये चीज़ बुरी है, ये भली है। यानी अल्लाह ताला ने ये चीज़ें जो सबसे पहला अरेंजमेंट की है, कि अपना जो शऊर है वो, और उसके साथ हादसा जमालियात, ये इंसान के अंदर रख के, हादसा जमालियात और हादसा इखलाक, यानी एस्थेटिक सेंस, मॉरल सेंस, ये इंसान के अंदर रख के उसको ज़मीन में उतारा है। यानी अब इसकी बेस के ऊपर कोई भी क़यामत के दिन ये नहीं कह सकता कि याला मुझे तो पता ही नहीं था, कि मेरे पास, मुझे तो तेरी पहचान कराने वाला ही कोई नहीं था। तो अगर ऐसा सीन हुआ, तो सूरह अराफ की आयत 172 के अकॉर्डिंग वो अल्लाह ताला के आगे जवाब दे है। यानी अगर कोई शख्स किसी जंगल में भी पैदा होता है,
और उस तक कोई भी यानी इंटरेक्शन उसका नहीं होता किसी के साथ। फिर भी जो अल्लाह ताला ने उसके अंदर कह लें कि एक एनग्रेव्ड किया है ना, जो नॉलेज एनग्रेव्ड करके भेजा है, ऑब्वियसली उसकी मेमोरी एरेज की हुई है, क्योंकि अगर वो मेमोरी भी आ जाती तो फिर कोई टेस्ट ना रहता। अब जो नॉलेज उसमें एनग्रेव्ड है ना, उसकी वजह से उसकी क़यामत वाले दिन पकड़ होगी कि अगर उसने ईमान और अमले साले पे अमल ना किया। तो ये चीज़ें ऐसी हैं, यानी अल्लाह ताला ने जो दीन है वो आपकी फितरत में रख के भेजा हुआ है। तो इंसान की तरफ से यानी जो उज़र आ सकता था, अल्लाह ताला ने पहले उज़र का खात्मा कर दिया। और ये अहद लस की फॉर्म में मैंने बताया, सूरह आराफ का यही मौजू है। आपको आयत 172 से 175 में ये चीज़ इन डिटेल मिल जाएगी। और इसमें सूरह शम्स की आयत है, जिसका बेशक कामयाब हुआ वो शख्स जिसने अपने नफ्स को पाकीज़ा किया। यानी जो इंसान का नफ्स है वो फजूर की तरफ भी बुलाता है और तकवा की तरफ। अगर अल्लाह ताला की बाउंड्रीज को आप मेंटेन करते हैं तो फिर आप तकवा का रास्ता इख्तियार करते हैं। लेकिन अगर आप उसको ब्रेक करते हैं तो वो फजूर का रास्ता इख्तियार करते हैं। तो ये सूरह शम्स में इस चीज़ का बयान है। और नबी के वसल्लम ने किस खूबसूरत अंदाज में इसी बात को बयान किया कि हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है। फितरत से यहाँ मुराद इस्लाम ली है, कि यानी बाद में उसके माँ बाप उसको मजूसी, ईसाई और इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। जो इंसान होता है वो नेचुरली अपने गॉड को रिकॉग्नाइज करता है, देयर दिस इज अ गॉड, दिस इज अ वन गॉड, दिस थिंग इज गुड, दिस इज बैड। ये इंसान में ना एक नेचुरल है। और ये अगर उसको कोई बताए या ना बताए, इसीलिए कुछ कहते हैं एब्सोलूट बुराइयां वो इंसान को ऑटोमेटिकली पता होती हैं। वो आप दुनिया के किसी भी माशरे में चले जाए ना, तो कोई भी ये नहीं बोलेगा कि यार आके मुझे लूटो। सबको पता है यार ये चोरी जो है ना वो बुरी चीज़ है। और इसीलिए लोग अवॉइड करते हैं, इसके लिए कानून बनते हैं। जहाँ जिनको मज़हब गाइड करता है वो मज़हब के मुताबिक लेके चलते हैं। लेकिन जहाँ पे मज़हब गाइड नहीं करता, तो वो ये अपनी फितरत जो उनके अंदर से पुकारती है उसकी रोशनी में वो कवानीन बनाते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने इख्तिमाम किया था पहला, जो जिस टेस्ट में अल्लाह ताला ने भेजा है उसके लिए, कि अगर इंसान की तरफ से पहला उज़र आ जाता कि या अल्लाह की कोई, मैं कैसे रिकग्नाइज करता, तो अल्लाह ताला ने उसके लिए जो पहला अरेंजमेंट किया हुआ है वो ये किया हुआ है कि अपनी पहचान आपके अंदर वदीयत करके भेजा हुआ है। देखें, जैसा कि हम जानते हैं कि जो अंबिया हैं, जैसे इंसान है वो दुनिया में आते हैं, वो इस तरह तो नहीं है कि एट अ टाइम सारे इकट्ठे आ गए हों। बल्कि अल्लाह ताला ने जो स्कीम रखी है, जो इंसान आते हैं वो जनरेशन्स बाय जनरेशन आते हैं। उनके आगे पीछे इन्वायरमेंट होता है जिसमें उसके पेरेंट्स हैं, रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है। यानी ये जितने भी रिश्तेदार हैं, आइज़ा अकरबा, ये उस पर असरअंदाज होते हैं। और इसमें इसकी वजह से ये होता है कि अगर कोई यहूदी है तो वो यहूदी ही रह जाता है, मजूसी है तो मजूसी ही रह जाता है। तो इसमें ये चांस था कि कल को क़यामत के दिन कोई शख्स आके ये कह सकता है कि या अल्लाह, मैं इस चीज़ की गवाही देता हूँ कि तूने इल्म मेरे अंदर रख के भेजा था। मैं इस चीज़ को मानता हूँ, मैं शहादत देता हूँ कि वाकई में ही था मेरे अंदर इल्म। लेकिन मेरे आगे पीछे इतने ज़्यादा हिजाबात थे कि मैं उनको हटा नहीं सका। मेरे इर्द गिर्द का माहौल ही ऐसा था, यानी सराउंडिंग्स में, इन्वायरमेंट में चीज़ें ही ऐसी थी। मुझे कहते थे लोग कि जीसस इज अ सन ऑफ गॉड, और कोई कहता था कि तुम खुदा के मुंतहिब कौम हो। तो मैं इस सूरत में क्या करता? अल्लाह ताला ने ना इस ये जो एक्सक्यूज था, इसको भी किल करने के लिए ना एक दूसरा अरेंजमेंट किया। और वो दूसरा अरेंजमेंट क्या था? वो नबूवत और रिसालत का सिलसिला। यानी आप देखें कि अल्लाह ताला ने पहले ही इंसान को पैगंबरी अता कर दी, हज़रत आदम के साथ पैगंबरी अता करके भेजा। यानी हज़रत आदम क्या चीज़ इस दुनिया में लेके आए? अहद अलस्त का शऊर। उसके साथ साथ क्या है, दूसरी चीज़ लेके आए? पैगंबरी। तो अब देखें, जो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि पैगंबर आते हैं, आके दीन पे बताते हैं। लेकिन कुरान इस एक बहुत डिफरेंट बात करता है। वो कहता है नहीं, दीन हमने तुम्हारे अंदर रख के भेजा है, और पैगंबर आके उसकी याद दहानी करवाते हैं। इसलिए कुरान जब भी जिक्र करता है ना पैगंबरी का, तो उसके साथ वो कहता है, जिक्रा का वर्ड यूज करता है, याद दहानी का। यानी वो आके जो आपके अंदर अल्लाह ताला ने दीन दिया हुआ है, जिसमें अपनी शौर दिया हुआ है, अच्छे बुरे की पहचान दी हुई है,
وہ اس کو آ کے پوائنٹ کرتے ہیں، ریفرنس دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ جب اللہ تعالیٰ نے ارینجمنٹ کیا، یہ دوسرا فرسٹ ارینجمنٹ ہم نے دیکھ لیا ہے دے الس کی فارم میں۔ سیکنڈ ارینجمنٹ جو کیا وہ نبوت اور رسالت کی فارم میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کی طرف سے ایکسکیوز آ سکتے تھے ان ایکسکیوزز کو ختم کر دیا۔ اور ایکسکیوز، جب ایک ایکسکیوز ختم ہو جائے یعنی عذر کا خاتمہ ہو جائے، اس کو اس کو بیسیکلی کہا جاتا ہے اتمام حجت۔ اب دیکھیں، جس طرح اتمام حجت ہے، اس کا بیسیکلی میننگ یہ ہے کہ عذر کا خاتمہ ہو جانا، مطلب نو چانس آف اینی ایکسکیوز، اس کو کہا جاتا ہے اتمام حجت۔ اب آپ دیکھیں کہ اتمام حجت کے ساتھ ایک قرآن میں اور بھی تعبیر ہے، اتمام نعمت۔ تو پیغمبر آتے ہیں، وہ آتے ہیں اس دنیا میں، وہ دو کام کرتے ہیں: ایک حجت تمام کرتے ہیں یعنی ایکسکیوز کا خاتمہ، کوئی بھی اب آپ کے پاس ایکسکیوز نہیں رہے گا قیامت والے دن۔ سیکنڈ، وہ کیا کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو دین کی فارم میں ہے، وہ آ کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس کو اتمام نعمت سے قرآن پاک نے تعبیر کی ہے سورہ مائدہ کی آیت 5 میں۔ تو بیسیکلی پیغمبری کا جو ہم نے، اس کو میں تھوڑا سا دوبارہ سمرائز کر دوں، پیغمبر آتے ہیں تاکہ انسان کل کو یہ عذر نہ پیش کر سکے کہ مجھے کوئی آگاہ کرنے والا نہیں تھا، خبردار کرنے والا نہیں تھا، وارن کرنے والا نہیں تھا۔ وہ آتے ہیں، انسان کو وارن کرتے ہیں کہ یار یہ تھے، یہ اللہ کا پیغام ہے، اس طرف لوٹ آؤ، تم اس ایگزام میں آئے ہو، اس ایگزام کی تیاری کرو، اس میں پاس آؤٹ ہو، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا تمہارے لیے اجر رکھا ہوا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پیغمبر آ کے کرتے ہیں، اتمام نعمت بھی کرتے ہیں، اتمام حجت بھی کرتے ہیں۔ اب اتمام کا مطلب بیسیکلی اگر ورڈز میں جائیں تو اس کو کہتے ہیں پرفیکشن، مطلب پیک آف دا پیک پہ لے جاتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی چیز ہے اتمام حجت جب ہم کہتے ہیں، اس ورڈ سے میننگ کا مطلب یہ ہے، اور جس کو قرآن پاک نے یوز کیا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ چیز کو پرفیکشن تک لے کے جانا، یعنی عذر کا خاتمہ کر دینا۔ اب یہ تھا بیسیکلی ہمارا آج کا سیشن 1 کا ٹاپک۔